let's start with the basics. Deformation may be a change in size or shape. Okay? If it is change in size, it is quantified by changes in the length of certain reference line segments. Okay? In that case, we call it normal strain. And if it is about change in shape, then it is quantified by changes in the angle between the reference line segments. Okay? In that case, we call it shear strains. Okay? So let's look at normal strain first. If this is a given bar, let me show you the bar first, maybe. Okay. And I'm not sure if it deleted the original bar. Okay, the original bar had a length of L naught. I'm sorry, the original bar is just deleted there, I guess. And then you apply some load to the ends of the bar. What happens to the bar? It elongates. Okay? So this is the elongated length. Okay, let's call this elongated length as L. Then you see this, let's call the elongation as delta. Then the average normal strain represented by epsilon average would be equal to change in length delta divided by the original length L naught. Okay? Now you can write delta, the change in length, as L minus L naught. What is L? The changed length, the new length L, minus the original length L naught divided by the original length L naught. Okay? Okay, this is L. So you can write the equation in the form like L minus L naught equal to epsilon average times L naught. That's fine? Yes. So you can write down L equal to the original length L naught plus epsilon average times L naught. I can take the L naught as a common, and you can see that it can be written as the changed length, the new length L can be written as 1 plus epsilon average times the original length L naught. Okay? Yes, sir. Now this is an important result which we will be using in the upcoming discussion. Okay? Changed length, the new length is equal to, you can write it down on your registers, the changed length is equal to 1 plus epsilon times the original length. So if you know the original length, you know the strain at that point, or maybe just strain, maybe I could say at the moment, just strain. You know the strain, you know the original length, you can find the changed length. Okay? Now, in the previous case, we discussed a bar subjected to a tensile loading, but if you look at a beam, it's a different scenario. Okay, let's consider maybe a simply supported beam subjected to UDL, and you know that you can draw the bending moment diagram. You can calculate the bending stress sigma equal to minus m by over I. We've been doing this. Okay, and you can convert this sigma, the stress, into strain by using Hooke's law. Okay, strain is equal to sigma over E, because you know sigma is equal to E times epsilon, which is what Hooke's law is for simple loading. So you can calculate strain in a beam like this. Okay, calculate stress using m by over I minus m by over I, and then divide it by E to get the strain. Okay, so in the previous example, we were talking about a whole bar. If this is the bar we were talking about, and we were pulling this bar, and we were talking about the deformation in the whole bar. The original length of the bar was the total length of the bar. Okay, we were talking about the total length of the bar as the original length. Okay, and then we were talking about the change in the original length, and the original length was just the whole length, a big length. Okay, now. And that's why we were using the term epsilon average, average normal strain. Okay, the average value of the normal strain in that bar. Okay. Now, if you take, for example, if there's any body, any shape, and like you can see over here, and let's say the undeformed shape is given by this first figure, and you consider any 2 points. Okay, any 2 points on that bar.
and let's say the distance between those 2 points is delta S, and when the loading is applied, the body deforms, and then again the 2 points are now separated by a different length, delta S prime, okay? In this case, again we can define epsilon, normal strain, as the change in length divided by the original length, okay? If you take the 2 points, the 2 original reference points, close enough, then delta S will be a small length, maybe approaching to 0. In that case, we could use the term strain at a point. Let's say that point was A. A is the point midway between the reference points. Okay. If delta S is a small length approaching to 0, then you could define strain at point A, not the average strain. Strain at a given point, epsilon A, equal to, by this expression. Okay. Limiting value of delta S prime minus delta S. What is this? Change in length of the original delta S. Okay, divided by the original. Same expression, but this time the only difference is we're not talking about the whole length of the body. We're talking about just 2 points located close enough. We're talking about strain at certain point, not the average strain. Okay, so the average strain is when you consider a sufficiently large length, and strain at the point means you're considering the original 2 reference points close enough. Okay. So the original length is approaching to 0. Okay. So, and if you want to write it down again, like we did for the previous case, delta S prime, the changed length. Delta S prime is the changed length. You can write it down again as 1 plus strain times the original length. In this case, it is not the average strain, it is the strain at that point, at A. So 1 plus epsilon A times delta S. Get it? So if you want to write down a changed length, you can write it down in terms of strain and the original length in this form. 1 plus epsilon times delta S. Okay? So similar things can be done for, you can do similar things for shear strain. Okay, this is what exactly I discussed on my slides. यही से मैंने basically लिया हुआ मैंने discuss किया और मैंने given बात की थी जिसके लिए average strain की discussion हमने की फिर हमने नीचे कि वही figure जो मैंने जब presentation में दिखाया so हमने इस form में ये लिख दिया ये आपको नजर आ रहा है सही zoom कर दे okay clear enough yes sir. So what about the units of strain? Normal strain? No units, okay? This millimeter per millimeter inch per inch. Sometimes, because it's going to be a small number, as you would have seen in your experiment on tension test and bars, it's going to be a small numbers, millimeter per millimeter or inch per inch. So just to make it a little bit easy to present it, we sometimes report it in percentage. But most of the times we just report it in we mention millimeter per millimeter, inch per inch to tell that it is not a percentage value. It's a raw answer without just a fraction. Answer in terms of fraction, not in percentage. Okay. So now what about shear strain? Normal strain was so whenever you talk about strains or any kind of deformation, the first thing that you need to bring in your mind is original body, okay, or original. In case of normal strain, you need to consider original reference length, which you keep on monitoring. You just keep on monitoring the changes in length of that reference line segment. And in case of shear strain, again we consider some reference line segments, but this time we're not interested in the change in length of those line segments. We are interested in the change in angle between those line segments. For example, if this is a given undeformed body, look at this first figure. So we consider, in an undeformed body, we consider 2 line segments with known angle less than 90 degrees, which is an easy reference. Okay, just an easy reference. Two line segments at 90 degrees. Okay, undeformed body. We consider 2 line segments at 90 degrees. Okay.
Now, once the loading is applied, so we could say the angle is pi by 2 right now, undeformed body. Those two line segments are at 90 degrees, at pi by 2 degree. And when the loading is applied, we keep monitoring those two line segments, and we just track the angle between those line segments. We're not interested in shear strain doesn't bother about the length of those segments. Shear strain bothers about the change in angle between those line segments, because that's what represents the change in shape. Okay? So there are two possibilities. For normal strain, there were two possibilities again. It may be elongation, it may be shortening for normal strain. But for shear, again there are two possibilities. So the two line segments may be coming closer to each other in the deformed body, or maybe they're going further apart. Okay? So there are again two possibilities. We have to consider one of them as positive shear strain and the other as a negative shear strain. Okay? So we consider this coming closer together as positive shear strain. If the angle, if simple words, if the two reference line segments are coming closer together, we consider it as positive shear strain. Now how do you quantify this shear strain? It is equal to change in angle between the line segments. What I mean by that is, so if these were the two line segments we were considering in the undeformed body, they were at 90 degrees to each other, okay, pi by 2 in case of radius. And now what happens is that these are, okay, this is again the undeformed body, okay. And now what happens is, they are now at different angles, maybe like this, okay. Now if the new angle is theta, then this angle, new angle is not called the shear strain. This new angle, I repeat, this theta, the new angle between the two line segments, the new angle is not called the shear strain. What is shear strain? It is change in angle between these two line segments. The original angle was pi by 2, the new angle is theta. So what is the difference? Pi by 2 minus theta. So shear strain gamma, represented by gamma, is equal to the original angle, which was pi by 2, minus the new angle, the difference between these two. Okay, you may be wondering why don't we call it theta minus pi by 2. You could do that way, but it is just about sign convention. Okay, at the end of the day, you calculate the difference between the original angle and the new angle, but this is just sign convention. We're using the original angle first and then subtracting the new angle. Okay, and that way they are coming closer together. We are considering this as positive shear strain. We are calling this deformation as positive shear strain. So you can get a positive answer out of it if this theta is smaller than pi by 2. Of course, pi by 2 is 90 degrees, theta is something less than 90 degrees. Only then you will get a positive answer. Because we are calling this as positive shear strain, we need to write the equation in this form: pi by 2 minus theta instead of theta minus pi by 2. Okay? We're calling this as a positive shear strain. But if this happens, the original angle is 90 degrees, and now let's say the angle increases to something greater than 90 degrees. Now they are going farther apart. In this case, this answer is going to be negative, because this is 90 and this is something greater than 90. So it's going to be a negative answer. So this is what we call as a negative shear strain. So negative shear strain is when the two line segments, originally at 90 degrees, they change their angle such that they are farther apart. They are coming closer to each other. This is positive shear strain and this is negative shear strain. So you have seen that in case of shear strain, we don't care about what happens to the length of these two. We don't care about that. We just talk about what is the new angle between them. Just keep monitoring that angle. But in case of any combined loading, at certain point there may be normal strain as well as shear strain. Okay, both can happen simultaneously. Like you can have shear stress and normal stress and shear stress at certain point. Both can exist. Similarly, at certain point, normal strain as well as shear strain can exist. So in that case, it is easier to represent the state of stress in the form of a cubical element. For example, the original element is like this, undeformed element, okay, with certain lengths
Okay, so with angles of 90 degree, initial angles are all 90 degree. It's a cube, and their original lengths are delta y, delta z, and delta x. If I can just do it a little bit. Okay, so this is the undeformed element. Now, for each direction we have some original length. Delta x in x direction, delta y is the original length in y direction, and delta z is the original length in z direction. And similarly, we got all angles equal to pi by 2. All right. So, so let me tell you how we're going to represent this element. So this is the deformed element. Now, two things are happening simultaneously. A line, the side of the cube may be either a longer side this time, maybe longer or getting longer or shorter, and it may be changing its angle with the adjacent side. Okay, for example, in this case, we are assuming for this hypothetical discussion that the sides are elongating. Okay. So if you remember, we discussed that the change length can be written as 1 plus epsilon times the original length. Okay. So the change length in y direction is now 1 plus epsilon y times delta y. What is delta y? Original length in y direction. What is epsilon y? Strain in y direction. Okay. Similarly, for the x direction, we are writing it down as 1 plus epsilon x times original length in x direction, which is delta x. Similarly, 1 plus epsilon z times delta z. Okay. So these are normal strains. What about the shear strains? The new angle, there are two ways to represent shear strain. Maybe you could say well, one way is that you can write it down like this. This is gamma by 2 and this is gamma by 2. This is one way of telling the shear strain. मैं आपको ये बता दूं gamma by 2 ये gamma by 2. इसी तरह मैं आपको ये कहूँ क्योंकि चेंज है ना, तो वो चेंज एक तरफ हाफ दूसरी तरफ भी हाफ. Okay, this is one way of telling it. The other way is कि मैं आपको कहूँ कि ये जो चेंज इस इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू gamma minus y का बन जाएगा. क्या और कुछ बनेगा? pi by 2 minus gamma, I think. pi by 2 minus gamma बनेगा ना? जी सर. pi by 2 minus gamma. थीटा को अगर gamma की फॉर्म में लिखना हो. दूसरा तरीका ये कि मैं इस थीटा ये भी मैं नाम बताऊँ आपको, और मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो नया एंगल है ये है pi by 2 minus gamma. अगेन मैंने gamma को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना था. So either I show it over here, और जो चेंज एंगल है थीटा उसको मैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन लिखूं. इट इज इस तरह भी आप लिखिए ऐसे ही जैसे आप चेंज लेंथ को ऐसे लिख सकते हैं. आप चेंज लेंथ बता दें, जैसे मैं यहाँ चेंज एंगल बता दूं. दूसरा ये कि मैं आपको एप्सिलॉन बता दूं बस. ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ शीयर स्ट्रेन बता दूं तो gamma by 2, यहाँ मैं आपको चेंज एंगल बता दूं. इन ईदर वे आई एम टेलिंग यू कि ये शीयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी. यहाँ पर आपको पहले नजर आएगी जो यहाँ लिखा होगा वो शीयर स्ट्रेन होगी. जैसे यहाँ पे अगर किसी साइड के साथ मैंने ये लिखा होगा तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रेन है वो साइड के अलॉन्ग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है. करेंगे. सो इसलिए आपको यहाँ अच्छा अब इसमें एक और चीज देख लो. जैसे हमने एप्सिलॉन के साथ सबस्क्रिप्ट लिखा है ना, एक्स वाई या जी जिस भी डायरेक्शन में है, इसी तरह आपको गैमा के साथ दो सबस्क्रिप्ट मिलेंगे क्योंकि जो शीयर स्ट्रेन है उसको डिफाइन करने के लिए आपको दो लाइन सेगमेंट चाहिए. एक के अलॉन्ग होगा, दूसरे के अलॉन्ग होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने गैमा के साथ वाई जी लिखा हुआ है इस वाले केस में. ये क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल लाइन सेगमेंट्स हैं दोज वर वन वाज अलोंग y, the other was along z, और उन y और z के अलोंग लाइन सेगमेंट से उनके बीच में चेंज इन एंगल को हमने गामा yz कहते हैं, यानी yz प्लेन में shear strain. इसी तरह गामा xz और गामा xy आपको नजर आ रहे हैं. सो ये जो तीन आपको नजर आ रही वैल्यूज ये क्या चीजें हैं?
शेयर स्ट्रेन है। ऊपर वाली ये यस 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स सर, एक्स वाई प्लेन में शेयर स्ट्रेन। नहीं 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स डेल्टा एक्स के बाद 1 प्लस एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई ये क्या चीज़ है? नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन है सर, एक्स डायरेक्शन में फिर स्ट्रेन तो खाली पे मुझे एप्सिलॉन एक्स लिख देना चाहिए अगर मैं खाली स्ट्रेन की बात करूं। नॉर्मल स्ट्रेन चेंज लेंथ है ना, तो नॉर्मल स्ट्रेन। It is not change in length, it is a changed length. Okay, changed length in x direction, changed length in y direction, changed length in z direction. So अगर आपने न्यू वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले तीनों को, ठीक है? द न्यू वॉल्यूम। ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है? सेकंड लाइन में changed angle in x plane, xy plane, changed angle in y plane, changed angle in okay. And these are going to produce a change in the shape of the element. ऊपर वाले change करेंगे वॉल्यूम को, नॉर्मल स्ट्रेन्स, ये साइड्स की लेंथ को छोटा या बड़ा करेंगे, और नीचे वाले शेप चेंज करेंगे। Okay, that's enough for the basics. हमने असल में स्ट्रेन नहीं पढ़ा, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का टॉपिक स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। We are going to actually see ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जिसमें स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी ना, कि एक रेफरेंस प्लेन के ऊपर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता है, और इसी तरह से अगर आप दो रेफरेंस प्लेन्स ले लें एक्स और वाई, हमने डिस्कस की, उन दोनों के ऊपर आप नॉर्मल शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स पता है, और अब मैं एलिमेंट की किसी ओरिएंटेशन को चेंज कर दूं कि मुझे इस ओरिएंटेशन के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता दे, तो वो काम आपने कर लिया, ठीक है? Similar things are going to be done for strain transformation, but the only thing that you need to understand is कि हमने state of strain को represent करना कैसे होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, चलिए आगे जाकर आपको फिगर से बताता हूँ। प्लेन स्ट्रेन का अगेन वही मतलब है, एप्सिलॉन z इज 0। अगर एप्सिलॉन z और z गैमा 3 हमने पढ़े ना, जिसमें भी z आ रहा है कहीं पर भी वो 0 है, और एप्सिलॉन z भी 0 है, ठीक? इन दो गैमा 0 हो गए, एक yz और एक xz वाला, सिर्फ xy रहा है, ठीक? इसी तरह से एप्सिलॉन z 0 और सिर्फ एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y। इस तरह, अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम कहेंगे ये प्लेन स्ट्रेन। देखो I want you to understand one thing. काफी मुश्किल से समझाई जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। इस एलिमेंट को देखा जरा, इस एलिमेंट के ऊपर आपको ये एलिमेंट किस स्टेटस की, अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करूँ, ये 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है या प्लेन स्ट्रेस में है? प्लेन। प्लेन जी वाले फेस पे कोई स्ट्रेस है? नो, नहीं है ना। और शेयर तो खैर इसमें हमने दिखाया ही नहीं, ठीक है? दीदी है ना, स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस में है ये एलिमेंट, जी वाले फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं है, और जी डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? शेयर तो इसमें है ही नहीं। सो इट इज इन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। ये जो आपको नजर आ रहा है स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस है। इज इट आल्सो स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन? नो। अगर इक्वल वो है तो फिर नहीं है। सॉरी, वो है इक्वल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि एंगल चेंज होगा वैसे ही। इस केस में हम क्योंकि शियर स्ट्रेस भी कोई नहीं, शियर स्ट्रेन भी कोई नहीं, तो इसके एंगल चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ साइड्स या छोटी हो रही है बड़ी हो रही है। हम इसी केस तो the normal strain in this case, normal stresses and normal strains. Is it in case, the question is it state of plane strain? नो। No. Why? तीसरा भी है लग रहा है। Epsilon z is not 0. यस सर। Epsilon x is not 0, epsilon y is not 0, and epsilon z is not 0. क्यों 0 नहीं है? z की डायरेक्शन में स्ट्रेस तो कोई नहीं है, तो 0 क्यों नहीं है? z की स्ट्रेन क्यों प्रोड्यूस हो रही है? There is a phenomenon known as poison नहीं बल्कि poison है, ठीक है? Poison effect. So what is Poisson effect? Poisson effect.
अगर मैं एक इस देखें जरा, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा ना इस डायरेक्शन में, ये लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में इसको खींच रहा हूँ, तो इस लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये नॉर्मल स्ट्रेन पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी टेंसाइल स्ट्रेन बोल सकते हैं, एलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही है, ये इस डायरेक्शन में तो खिंच जाएगा, इस लॉन्गिट्यूडल में। इन डायरेक्शन को क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड डायमेंशन को कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्टनिंग होगी, कंप्रेस होगी। शॉर्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं कोसाइन इफेक्ट। ठीक, अगर एक भी स्ट्रेस लग रहा है एक भी डायरेक्शन में, तो वो इस अपने एक डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन लग रहा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा उसको आप लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कहना चाहते तो कह दे। दूसरी जो डायरेक्शंस होंगी परपेंडिकुलर, उन डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, एक इसकी अपनी डायरेक्शन में और दो अलग डायरेक्शन जिनके लोड नहीं लग रहा था, लेकिन उनके दौरान उनके अलॉन्ग अपोजिट सेंस की स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। जो इस सेंस में प्रोड्यूस हो रही है ना स्ट्रेन, अगर इधर लॉन्गेशन हो रही है तो इस तरफ शॉर्टिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये अगर एक भी स्ट्रेस लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, तो वो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब क्या हो, प्लेन स्टेट, जो एलिमेंट स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस में है वो प्लेन स्ट्रेन में नहीं हो सकता। Now I want to reverse the question. If an element is in state of plane strain, will it be in state of plane stress? Yes. Good question to ask. खुद से नहीं होगा, you gotta do something about it. Okay? For example, let me give you try to imagine this. मैं इसको let's say पहले मैं इसको ऐसे पुल कर रहा था ना, पुल, तो पुल में थोड़ा समझाना मुश्किल है, अभी बात वो भी समझा दूंगा। कि पहले दूसरे, जब अगर उसको ये कर रहा होता ऐसे पुश कंप्रेस कर रहा होता, तो इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में शॉर्टिंग होनी थी, इस डायरेक्शन में क्या होना था, एक्सपेंशन, लंबी होनी थी साइड ना। अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूंगा लोड अप्लाई करते हुए, ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इन पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडल में, और इन दोनों में पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी साइड, एक्सपैंड होगी। अगर मैं इसके बारे में कुछ करूं, क्या करूं कि मैं इसको रेस्ट्रेन कर दूं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको अब पुश करने से पहले एक मोल्ड, एक बॉक्स में डाल दूं जो इसको एक्सपैंड ना होने दे। ऊपर वाली साइड इसको मैं केसिंग पहना देता हूँ, ठीक है, रिजिड केसिंग, और जो इसको इसके साथ इस तरह से प्लेस हो कि गैप ना हो बीच में। तो अब मैं इसको ऊपर से लोड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, देयर इज अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, स्टिल टेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, बट वी आर नाउ प्रिवेंटिंग दैट टेंडेंसी। डू यू थिंक व्हाट हैपेंस इन दैट केस, इन दिस डायरेक्शन? एक चीज अगर मैं इसे पुश कर रहा हूँ, ट्राई टू इमेजिन दिस, लेट्स से we're not yet at the cracking stage, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से लोड अप्लाई करें, it wants to expand, आप एक्सपैंड नहीं होने दे रहे, तो वो जो साइड्स हैं वो कैसे इसको रोक रही हैं, जो केसिंग की साइड्स हैं वो क्या करेंगे इसको रोकने के लिए? फोर्स अप्लाई करेंगी ना। There is a tendency to expand and you want to prevent that tendency. How would you do that? You gotta apply some force. वो केसिंग सम फोर्स अप्लाई करेगी। तो इस डायरेक्शन में केसिंग की तरफ से एज अ रिएक्शन टू एक्सपेंशन, जब एक्सपैंड होना चाह रहा था एंड दे वर होल्डिंग इट फ्रॉम एक्सपेंशन, फोर्स अप्लाई हो जाएगी। फोर्स अप्लाई होगी तो क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा ना इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी हमने प्लेन स्ट्रेन का स्टेट अचीव करने के लिए कि यार प्लेन स्ट्रेन के लिए आई वांट टू मेक श्योर कि ये एक्सपेंशन ना हो, वो स्ट्रेन जीरो रहे। हमने उसको जीरो करने की कोशिश की, प्लेन स्ट्रेन तो बन गया, बट नाउ वी गॉट स्ट्रेसेस इन दिस डायरेक्शन एंड स्ट्रेसेस इन दीज टू डायरेक्शंस एज वेल, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम जो फोर्स उसको अप्लाई कर रही है केसिंग टू कीप इट फ्रॉम एक्सपेंशन। गेटिंग इट? सो वी अचीव प्लेन स्ट्रेन बट वी लॉस्ट द स्टेट ऑफ plane stress. So what does it mean? The two cannot exist
simultaneously. If it is plane stress, it cannot be plane strain. If it is plane strain, it cannot be straight up plane stress. Okay? I don't want to spend any time on the derivations, similar things as we did for the stress, just the geometric relationships. So I don't want to go and discuss the derivation, but what I want to tell you is, look at this test. Compression में आपने कभी slender test किया होगा? Okay, tube वगैरह की mechanics से you must have done this test. Let's say ये एक टेस्ट हो रहा है, ओके? और मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितनी स्ट्रेन है? जस्ट ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट. What is the strain in this body? The test हो रही है. What is going to be your answer? Of course, numerical value मैं नहीं कह रहा हूँ, but just this. What comes to your mind जब मैं कहता हूँ what is the strain in this body? Compared to what? Okay. इसकी शॉर्ट में You're right. This is something that comes to your mind. ऐसे ही ये बॉडी है और इधर से ये लोड्स लग रहे हैं. ठीक हो गया? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ? ये स्ट्रेन क्या है? इसमें स्ट्रेन क्या है? ऐसे ही है. तो नॉर्मल स्ट्रेन के लिए से बात कर रहे हैं हम. तो नॉर्मल स्ट्रेन के लिए क्या जरूरी है कि आप एक रेफरेंस एलिमेंट तो आपने कंसीडर, रेफरेंस लेंथ एक लाइन तो आपने कंसीडर की हो ना, जिसको गेज लेंथ आप फिजिकल टेस्ट में गेज लेंथ उसको बोल देते हैं. अगर मैं गेज लेंथ ये ले रहा हूं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा. मैं तो खाली ये कहा ना व्हाट इज स्ट्रेन इन दिस बॉडी, आपने कहा कंप्रेसिव शॉर्ट. तो अगर आपके माइंड में ये था, ये रेफरेंस एलिमेंट था, लेकिन मैं तो लेट से मेरा रेफरेंस एलिमेंट तो मेरे जहन में था कि मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है इसके नतीजे में इधर क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम कर लेते हैं. That's volumetric strain, something a little bit above this stage. अभी मुझे थोड़ा सा volumetric strain is another thing. आगे जाके हम डिस्कस करना चाहेंगे, but right now we want to focus on normal strains only, जो single dimension के साथ ताल्लुक रखती है. Okay, so अच्छा, अगर एक और बंदा आके कहता है कि नहीं मेरे जो रेफरेंस लाइन सेगमेंट है वो तो ये था, उससे कौन सोचने से रोक सकते हैं? वो थी, उसके जहन में यही था. पॉइंट एक ही है ना, सारे एक ही पॉइंट पे बात हो रही है, इसी पॉइंट पे बात हो रही है ना. इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में अपना रेफरेंस एलिमेंट लेता हूं तो द आंसर डिफरेंट फॉर द स्ट्रेन. इस डायरेक्शन की बात करता हूं, आई गेट अ डिफरेंट आंसर. किसी और बीच में कोई और डायरेक्शन की बात करता हूं, आई गेट अ डिफरेंट आंसर. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कि एक ही लोडिंग लग रही है, एक ही पॉइंट पे स्ट्रेन की बात हो रही है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जब हमने स्ट्रेस को डिस्कस किया था तो हमने कहा कितना स्ट्रेस है. व्हाट कम्स टू योर माइंड एज अ फर्स्ट थिंग कि आप क्रॉस सेक्शन ऐसे ले रहे हैं. ठीक, कोई बंदा क्रॉस सेक्शन ऐसे ले, उसके आंसर तो 0 आएगा. कोई बीच में इंक्लाइन ले लेगा, सारे एक ही पॉइंट से गुजर रहे होंगे. ठीक है. सो जैसे स्ट्रेस के केस में डिपेंडिंग अपॉन योर रेफरेंस प्लेन ओरिएंटेशन कि आप किस रेफरेंस प्लेन पे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, you get a different answer. Similarly, in case of strain, depending upon the reference line segment orientation you are talking about, you will get a different answer. It means we need to tell two things to give the complete answer. हम ये वाली स्ट्रेन भी बताएंगे, अगर प्लेन स्ट्रेन है नहीं जैसे प्लेन स्ट्रेन दूसरी आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन है उसमें भी shortening हो रही है, but we are just simplifying the problem as being in the state of plane strain. ये भी अगर बता दें, ये भी बता दें, तो हमने enough information convey कर दी है कि ये अगर हमें पता हो कि इस डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन है, इस डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन है, फिर इस नॉन इंफॉर्मेशन को यूज करके we can calculate strain along any line. For example, इसके along strain बताओ, इसके along strain बताओ. मुझे तो बंदा कहता है कि मुझे इसकी लाइन के along strain बताएं. Okay, I'll tell you. मुझे ये एंगल बता दें कि थीटा, कि इस थीटा मेरे रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन सेगमेंट से
इतने एंगल पे मेरी वाली लाइन गुजर रही जहां मैं स्ट्रेन फाइंड करना चाहता हूं. ओके, आई नीड टू डेवलप एन इक्वेशन व्हिच कैन गिव मी strain along this inclined direction using the data for the reference states epsilon x, epsilon y, and similarly theta की फॉर्म में जैसे आपने सिग्मा x, सिग्मा y, tau x, y और theta की फॉर्म में किसी भी inclined plane के लिए stresses find किए थे sigma x prime, tau x prime, y prime. Something similar has to be done for strains. Otherwise, the answer is incomplete. What does it mean? You need something like this, but before I go over there, let me tell you the sign convention, which we have already although discussed, but just to quickly, क्योंकि आपको यूज करना पड़ेगा. ये इस A वाली फिगर को देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? एक एलिमेंट है. Sorry, I don't want to show you this right now. अगर उसने ड्रॉ नहीं किया तो फिर मेरा तो मसूल तो नहीं है. लेकिन there we go. ये फर्स्ट फिगर. अगर आपको ये ड्रॉ करना आ गया जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको इस टॉपिक में कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ आपको मैथ कराना चाहिए और आगे जाएगा. There is nothing new in this topic if you know what this figure is telling you. ठीक है, मैथ कैन आगे क्या अगर आपको आता है, आपको इक्वेशन से भी खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तकरीबन उसी तरह की इक्वेशंस, सिर्फ सैंपल्स डिफरेंट हो जाएंगे. स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन के सैंपल्स आ जाएंगे. आपको क्या नजर आ रहा है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ? आपको क्या लग रहा है देखने से? व्हाट कम्स टू योर माइंड? मैं आपको क्या शो कर रहा हूँ? नेगेटिव शेयर सर एक हमारे साथ अनडिफॉर्म्ड यस, वेरी राइट. एक एलिमेंट अनडिफॉर्म्ड है और एक डिफॉर्म्ड है. जो अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है उसकी साइड्स की डायरेक्शन को नाम दिए हुए हमने. अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट को, शेडेड एलिमेंट को देखो, उसकी साइड्स को एक को हमने x का नाम दिया है, दूसरी वाली एक हमने जो दूसरी जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने y का नाम दिया हुआ है ना. अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट को देखो, नजर आ रहा है x और y, और फिर उसी के साथ ही हमने डैश लाइंस के थ्रू डिफॉर्म्ड एलिमेंट बनाया हुआ है. स्ट्रेन ऐसी किसी को बता सकते हैं ना कि पहले आप अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट बताएं, फिर उसी के साथ ही आप डिफॉर्म्ड एलिमेंट बताएं. इसी से स्ट्रेन पता चलेगा, और तो कोई तरीका नहीं ना. ऐसे ही ना स्ट्रेस में तो आप एक एरो ड्रॉ करते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी, वैल्यू बता दें, एरो बता दें कि वैल्यू आ रहा है. बात खत्म. स्ट्रेन में you have to tell the undeformed element and deformed element. X के along जो ओरिजिनल लाइन सेगमेंट है उसको हमने क्या सिंबल दिया हुआ है? dx. और y के along जो ओरिजिनल लाइन सेगमेंट है उसको dy. अगर मैं आपसे कहूं कि डिफॉर्म्ड एलिमेंट की जो आपको शेप नजर आ रही है ये वाली है, और मैं आपसे कहूं कि x के along कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? आपके पास कोई और दो किसी और कलर का है मार्कर? ब्लैक है. ओके, सो दिस इज द अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट, और ये हम किसी पॉइंट पे स्ट्रेन बता रहे हैं, यानी इसलिए आपको शॉर्ट लेंथ dx dy किसी एक पॉइंट के ऊपर सारी बात चल रही है. ठीक. So this is the x side, this is the y side. Okay. Now we'll call this as dx and this as dy. Clear? And what is this angle? 90. Pi by 2 degree. Sorry. Okay. ये अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है. जो भी कुछ लोडिंग लगी उनकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं कि जो डिफॉर्म्ड एलिमेंट बन गया उसकी शेप ये है, अच्छा बाकी शेप कंप्लीट में बाद में करता हूं. अभी सिर्फ एक लाइन सेगमेंट को देखें. जो लाइन सेगमेंट पहले ये थी, आल्दो वो उसमें चूंकि शियर स्ट्रेन भी आ चुकी है तो वो अपनी ओरिएंटेशन भी तब्दील कर चुका है वही लाइन सेगमेंट को, लेकिन उसकी
अगर हमने उसमें स्ट्रेन को कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, उसी लाइन सेगमेंट हमने x के अलोंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर सिचुएशन इस तरह की होती ना कि नॉर्मल स्ट्रेन सिर्फ प्रोड्यूस हो रहे होते, लेट्स से ये हो रहा होता सिर्फ, तो फिर तो आसान है ना, आप कहेंगे ये dx है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और अब ये टोटल लेंथ को क्या कह सकेंगे, 1 प्लस नहीं 1 प्लस एप्सिलॉन x टाइम्स dx, सिंपल। लेकिन इस केस में एलिमेंट अब अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता है अपनी शीयर स्ट्रेंथ की वजह से। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे इस लाइन की, इस न्यू लाइन की, इसकी प्रोजेक्शन अलोंग x डायरेक्शन की लेंथ कितनी है, यानी ये लेंथ कितनी है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। हमने x के अलोंग स्ट्रेन बताना है, तो अब हम x के अलोंग वो लाइन कितनी लंबी हुई है या छोटी हुई है, ये यहां से नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग x पता चलेगा। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर मैं यही लाइन इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करने से पहले रोक देता, अच्छा इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ये स्ट्रेन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नॉर्मल स्ट्रेन, एलोंगेशन हो रही है ना, इसकी प्रोजेक्शन अलोंग x अब किसी पहले से बड़ी है, ऐसे ही है। अगर यही लाइन यहां पे मैं रोक देता तो इसकी ये जो प्रोजेक्शन थी, अब ये पहले ओरिजिनल dx से छोटी होती, तो ये मैं क्या, इसका स्ट्रेन क्या होती, माइनस में रिप्रेजेंट फिर भी इसी तरह ही करते हैं हम इसको, लेकिन अब एप्सिलॉन x की जो वैल्यू वो खुद एक नेगेटिव नंबर है, रिप्रेजेंट इसी तरह करेंगे। ये जब अगर आप खुदा न खासा बैलेंस की तरफ जाएं तो आप एप्सिलॉन x की नेगेटिव वैल्यू यहां आ रही है, 1 माइनस समथिंग बन जाएगा ये, करेंगे। सो नॉर्मल स्ट्रेन क्लियर हो गया आपको, नॉर्मल स्ट्रेन। इसी तरह अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को ट्रैक यहां मैं आपको दिखाऊं, ये जरूरी नहीं कि इस तरफ पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेन है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, हो सकता है इधर नेगेटिव भी हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर रुक गया बिफोर क्रॉसिंग दिस लाइन, तो ये अगर मैं बिल्कुल यहां पे रुक जाऊं तो अब कितनी स्ट्रेन है, 0, जितनी प्रोजेक्शन जितनी लेंथ पहले थी y के अलावा अभी भी उसकी प्रोजेक्शन उतनी ही है, 0। अगर पहले रुक जाऊं नेगेटिव, अगर क्रॉस करके रुकूं फिर पॉजिटिव। अच्छा ये आपको क्लियर हो गया। इसके मैं यहां पर सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा हूं, साइन कन्वेंशन बता रहा हूं ना अभी, पॉजिटिव स्ट्रेन अलोंग x, पॉजिटिव स्ट्रेन अलोंग y। क्लियर हो गया आपको। अब शियर स्ट्रेन को हमने, असल में शियर स्ट्रेन मुझे पहले यानी नॉर्मल जब मैं ड्रॉ करने लगूंगा तो मुझे शियर स्ट्रेन पहले ही पता होगा तो मैं ड्राइंग स्टार्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं इसको इस तरफ ये गेटिंग क्लोज वाला दिखाऊं या गेटिंग अपार्ट दिखाऊं इसको, ठीक है। सो शियर स्ट्रेन आपको क्या नजर आ रही है यहां से, अच्छा यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी है, बाकी ड्राइंग इनको देख के होगी, कैसे, इसके पैरेलल लाइन यहां पे रखनी है, इसी को लाइन आप समझ लें मैंने कॉपी करके यहां पेस्ट कर दी, ठीक है, क्लियर। यस सर। सो अब इसे मैंने अभी तक कहीं कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया कि शियर स्ट्रेन है कितनी, पॉजिटिव या नेगेटिव है, वैसे पॉजिटिव, इसको मैं पॉजिटिव माना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे वहां हुआ है यस ये एंगल गामा x y by 2 और ये एंगल गामा x y by 2। दिस इज हाउ यू गोइंग टू सेट। दूसरा तरीका में क्या, तरीका हम ये यूज करेंगे, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं आपसे कि अगर दूसरा तरीका क्या था, ये जो चेंज एंगल है ना, ये हम बताते हैं कि दिस इज नाउ
पाई बाई 2 माइनस गेमा एक्स वाई, ये हम यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली ये यूज करेंगे। ठीक हो गया? अब आपने ये करना है कि ये जो मैंने आपको पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स, पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग वाई और पॉजिटिव शियर स्ट्रेन दिखाई है, आप अपने रजिस्टर पे नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स, नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग वाई और नेगेटिव शियर स्ट्रेन प्लॉट करके मुझे दिखाएंगे। डिसाइड करना है शियर स्ट्रेन को, उस की लेंथ कहां पे रोकनी है ये डिसाइड करेगा नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, एक ही कि मैंने बनाई हुई है और मैं आपसे पूछूं कि बताएं नॉर्मल स्ट्रेन इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, शियर स्ट्रेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी ये कि मैं आपको वैल्यूज दूं, एप्सिलॉन x इक्वल टू प्लस दिस, एप्सिलॉन y इक्वल टू माइनस दिस, गामा xy इक्वल टू माइनस दिस, तो मैं आपसे को इसको शो करते हैं आप। ठीक है, तो मोस्टली आपको इस तरह का काम होगा, वैल्यूज होंगी, आपने उसको शो करना होगा और समटाइम्स आपको फिगर दी होगी और आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो हमने बात की है, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पर। ये जो एक मैंने आपको फिगर दिखाई है ना, ये हम स्टेट ऑफ स्ट्रेन बता रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, और ये हमारा ऐसा है जैसे हम ये एलिमेंट बता देते हैं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का एक्स वाई, ये ऐसा है। स्ट्रेस में चूंकि डिफॉर्मेशन का कोई चक्कर नहीं होता, एक ही आप क्यूब बना के स्ट्रेसेस का वेक्टर के साथ आप बता देते हैं कि टेंसाइल है, कंप्रेसिव और वैल्यू बता देते हैं। ये जो भी मैंने आपको ए में डाटा दिखाया हुआ ना, जितना अनडिफॉर्म और स्ट्रेन को जब भी डिस्कस करेंगे, अनडिफॉर्म और डिफॉर्म के फर्क ही बेसिकली स्ट्रेन है बेसिकली। ठीक, उसमें दो तरह के फर्क हो सकते हैं, लेंथ का फर्क और एंगल्स का फर्क। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रेफरेंस एलिमेंट में स्ट्रेन की डिस्कशन की है कि रेफरेंस एलिमेंट में स्ट्रेन ये है, यानी एक्स के अलाउंग वाई के अलाउंग नॉर्मल स्ट्रेन ये है और गामा एक्स वाई ये है। यानी आप समझे कि इस जगह हमने जो एलिमेंट लिया था उसके साइड्स के अलाउंग हमने बात की है कि ये स्ट्रेन है, यानी हमने अभी ट्रांसफॉर्म नहीं किया इसको, अभी किसी और रेफरेंस पे नहीं बात की, अभी हमने एक्स के अलाउंग नॉर्मल स्ट्रेन बताया ना, वाई के अलाउंग बताया, ये तो हमारा रेफरेंस लाइन सेगमेंट्स है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी जगह x और y के अलाउंग आपको नॉर्मल शियर नॉर्मल स्ट्रेन्स पता है और शियर स्ट्रेन्स पता है, तो आप और अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक डायरेक्शन है x प्राइम, ये एक डायरेक्शन है y प्राइम, इनके रेफरेंस अगर मैं अपने रेफरेंस लाइन सेगमेंट्स ये ले चुका होता तो मेरे आंसर्स क्या आए होते। गिवन दैट मुझे ये पता है, एप्सिलॉन x पता है, यहां से वैल्यू भी है मेरे पास, एप्सिलॉन y भी मेरे पास पता है, गामा xy भी मुझे पता है, और मैं अब ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं अपने रेफरेंस एलिमेंट्स इस तरह ले लेता, ये अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट, अब अगर ये होता, अगर अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट की जो साइड्स हैं वो x प्राइम और y प्राइम है, आप इंस्टेड ऑफ x एंड y, अब आप मुझे बताएं कि इसमें x प्राइम के अलाउंग कितनी स्ट्रेन है, यानी एप्सिलॉन x प्राइम मुझे बताएं, और इसी तरह आप मुझे गामा x प्राइम y प्राइम बताएं और एप्सिलॉन y प्राइम बताएं। अगर ये है स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन कि ये पता है और मैं आपसे कहूं ये बताओ, सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है? ये वाली यस, हाँ, ये हमें इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर वी कवर एवरीथिंग, और वो है स्टैटिस्टिक ज्योमेट्रिक डेरिवेशन है। मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये जो आप मुझे x प्राइम कह रहे हैं इसका मेरे x एक्सिस के साथ क्या एंगल है। So I actually need something like this, एप्सिलॉन x प्राइम और गामा x प्राइम y प्राइम की इक्वेशन, जैसे मुझे सिग्मा x प्राइम था एप्सिलॉन y प्राइम की इक्वेशन चाहिए थी ना, इसी तरह से मुझे इनकी इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस डेटा एंड द थीटा वेरिएबल। वो इक्वेशन हम we are going straight to those equations। अच्छा, सिर्फ बिफोर गोइंग टू those equations
अगर ये है मेरे नए वाले रेफरेंसेस एक्स प्राइम और वाई प्राइम, इनके अलावा मैं नॉर्मल और shear strain की बात कर रहा हूं। लेट्स से आपके पास कुछ आंसर्स आ गए यहां से, क्योंकि इक्वेशन दिखाता हूं आपको, इक्वेशन से आंसर निकालने को रॉकेट साइंस नहीं, वो मैथ करके आपके लिए करेगा, आपने सिर्फ समझना है कि इसको शो कैसे करना है। लेट्स से ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, और लेट्स से एप्सिलॉन वाई प्राइम जो है वो पॉजिटिव आ गया। चलो इसको मैं नेगेटिव कर दूं ताकि कुछ वेरिएशन आ जाए, ठीक है। अब मैं शो कैसे करूंगा, तो चलो मैं आपको सारे पॉजिटिव दिखाता हूं, नेगेटिव आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसके अपोजिट भी नेगेटिव होगा। अगेन शो उसी तरह से करना पड़ेगा। अब मैंने ये अनडिफाइंड एलिमेंट शो किया हुआ है, इसका नाम है, पहले हमने dx नाम यूज किया था इसके लिए, अब इसका नाम dx प्राइम रख लेंगे। पहले इसका नाम dy प्राइम रखा था, अब इसका नाम जिसके जिसके अलॉन्ग है उसी के हिसाब से नाम देते जाएंगे ना। और जब मैंने इसकी डिफॉर्म शेप बतानी है, अगर ये वाले आंसर है सारे पॉजिटिव आ गए, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, इन दो को अब मैं अगर शेप से पॉजिटिव है कि मैं एक्स प्राइम वाई प्राइम के करीब लेकर आऊंगा, ऐसे स्टार्ट करूंगा। मैंने shear strength शो कर दी है, अभी मैंने लेंथ फाइनलाइज नहीं की है। लेंथ कहां से फाइनलाइज होंगी कि ये आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दो। अगर लेंथ से दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं उस वक्त तक इस लेंथ को एक्सटेंड करते जाऊंगा जब तक कि इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस ऑन दिस डायरेक्शन इससे बड़ी ना हो जाए, यानी मैं इस लाइन को क्रॉस कर लूंगा ताकि ये जो प्रोजेक्शन है यहां से लेके यहां तक ये बड़ी आ जाए कंपेयर टू dx प्राइम। ये जो है प्रोजेक्शन, दिस इज 1 प्लस क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 प्लस x प्राइम, ओके गुड, dx प्राइम। और आगे भी मैंने क्या करना है, बढ़ते जाना है यहां तक। अब आप कॉपी दिस ओवर हियर, ठीक हो गया। इसी तरह आप लेबल कर देंगे इसको, यहां तक ये dy प्राइम था और यहां से लेके यहां तक ये इसके लाइन नहीं ड्रॉ करनी, यहां पे बहुत ज्यादा लाइन हो जाती है, बस बता देना। थोड़ा सा मेरा मशवरा ये होगा कि आप थोड़ा सा आगे अच्छी तरह आगे चले जाया करें, चाहे जो स्केल थोड़ी है ड्राइंग, इतनी ज्यादा shear strain थोड़ी होता है, इतना छोटा सा एंगल होगा, ये तो हम ड्राइंग को आसान करने के लिए इतना बड़ा एंगल दिखा देते हैं। अगर हम आगे कट में करेंगे तो शायद ये लाइन आपको एक दूसरे पे ओवरलैप होती हुई नजर आए, ठीक है। सो और लेवल बाकी भी उस तरह से कर लेंगे, जैसे ये मैंने आपका 1 प्लस एप्सिलॉन वाई प्राइम टाइम्स dy प्राइम हो जाएगा, और ये एंगल गामा x प्राइम y प्राइम बाय 2, और ये एंगल गामा x प्राइम y प्राइम बाय 2 जो आपको वहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि आप यहां पे सिर्फ वो शो करते हैं एप्सिलॉन x टाइम्स dx प्राइम, जैसे वहां पे शो होगा जो चेंज लेंथ नहीं, चेंज इन लेंथ को हमने स्ट्रेन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ शो किया हुआ वहां पे, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। इस तरह फिर ज्यादा इजी रहता है कि आप ये शो कर दें कि आगे कितना गया हुआ है, क्योंकि वो इधर से लाइन पे पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन किस की जगह है, ठीक है। तो आप इसको लेबल कर दें एप्सिलॉन x प्राइम टाइम्स dx प्राइम, इसी तरह इसको लेबल कर दें कि दिस इज एप्सिलॉन y प्राइम टाइम्स dy प्राइम, ओके। इक्वेशंस ये हैं, आपको बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन लगेगी विद वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। क्या फर्क नजर आ रहा है, जहां था एक्स वाई था ना वहां पर गामा एक्स वाई खाली नहीं आया, गामा एक्स वाई बाई 2 आया, हाँ। अब ये पूछ लेना हाफ किधर से आया, डेफिनेशन से आया, खुद से नहीं तो किसी भी क्या है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने हमारे पास tan x प्राइम y प्राइम अगर लिखना चाहे तो उसको 2 को इधर ला के लिख तो सकते हैं, बट ये ज़्यादा इसी तरह अच्छा लगता है, ठीक है। तो लेकिन एट द एंड आपको याद रहना कि अभी आपने हाफ को कैलकुलेट किया है, सो फिर वैल्यू पूरी कर देना, या मैथ कैड में आपकी मर्जी है, 2 पहले से आप इधर रखना चाहें तो इट्स अप टू यू, लेकिन हम नॉर्मली वैल्यू हाफ ही रिपोर्ट कर देते हैं, हाफ वैल्यू जितनी आई होती है ना वही, क्योंकि हमने शो यहाँ पे हाफ ही कर ली,
ठीक है, प्लस माइनस तो वही रहेगा, चाहे हाफ की वैल्यू हो या पूरी वैल्यू हो, 2 मल्टीप्लाई अगर हो भी जाए तो सेंस तो वही रहेंगी ना, प्लस या माइनस तो चेंज नहीं होगा इससे। इसी तरह एप्सिलॉन वाई प्राइम की डायरेक्ट आप इक्वेशन लिखना चाहें तो इस तरह की लिख सकते हैं, अदरवाइज उसी के एंगल उसी एप्सिलॉन एक्स प्राइम वाले के अंदर जहाँ थीटा लिख रहे हैं वहाँ पे अगर पहले 30 डिग्री पुट कर रहे थे तो आप 30 + 90 पुट करें तो आपको वैसे भी आंसर मिल सकता है ना। इसमें कैलकुलेशंस कोई मैं डिस्कस नहीं कर रहा था कि वैसे भी आपको पता है कैलकुलेशंस तो आपने मैथ कैलकुलेट करनी होती है, तो ये मैंने अब क्या बताना है कि थीटा की ये वैल्यू डालोगे और एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू डालोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो आपको प्रैक्टिस से पता चल रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, चलिए ये आपको खुद ही समझ आएगी बेहतर, मैं बताने से समझ नहीं आनी आपको। इस एग्जाम्पल को देखो क्या कह रही है एग्जाम्पल, state of plane strain at a point has components of this epsilon x epsilon y। उसने आप मेहरबानी करते हुए साथ में प्लस माइनस भी डाली हो, तो आपको रेफरेंस स्टेट ऑफ स्ट्रेन तो वैसे ही उसमें खुद ही प्लस माइनस खुद ही डाल दी और फिगर में भी वो चीज़ आपको नजर आएगी। एप्सिलॉन x पॉजिटिव है, प्रोजेक्शन बड़ी है उससे ओरिजिनल से, एप्सिलॉन y नेगेटिव है तो प्रोजेक्शन छोटी है, और गामा xy पॉजिटिव है तो ये कमिंग क्लोजर। ये आपको सिर्फ अभी रेफरेंस दिया गया, रेफरेंस स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन दिया गया है। फाइंड क्या करते हैं, डिटरमिन इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट ऑफ द मटेरियल ओरिएंटेड क्लॉकवाइज 30 डिग्री, यानी थीटा आपको -30 डिग्री इसने दे दिया है। बाकी की इक्वेशन पे वैल्यूज पुट की है, सिंपल, यू गॉट योर आंसर। एप्सिलॉन x प्राइम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, गामा x प्राइम y प्राइम की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, और एप्सिलॉन y प्राइम की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसलिए ये डायग्राम बनी। x के अलावा प्रोजेक्शन बड़ी होगी, x प्राइम के अलावा y प्राइम के अलावा 30 और कमिंग क्लोज, सिंपल। सर ये तो पिछला जो है उसी के मुताबिक जो अभी आपने जो ड्रॉ किए ना यस सर, उस तरह से वही चीज़ है, इसलिए आप कह रहे हैं अगर ये समझ आ जाए, बाकी जो इक्वेशन में थीटा पुट कर रहा तो काम ही आपका नहीं, वो तो यू नो इट्स नॉट अ बिग डील। इसी तरह अगेन वही इक्वेशन, उसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेन tan टू वही, अगर आपने ये फाइंड करना हो कि किस थीटा के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन x प्राइम ये नॉर्मल स्ट्रेन अपने मैक्सिमम मिनिमम पे होगी और शियर स्ट्रेन 0 होगी, तो वो इक्वेशन उसी तरह से थीटा भी आपको फाइंड करना है, दो एंगल्स होंगे, हर एक के अगेंस्ट आप चेक कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली इक्वेशन भी डायरेक्ट ये वाली पड़ी हुई है। प्रिंसिपल स्ट्रेन वाले एलिमेंट को जब आप दिखाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन वाले एलिमेंट को, तो उसमें यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ए में तो आपको गिवन एलिमेंट दिया हुआ है ना, जैसे पहले एग्जाम्पल में गिवन था एप्सिलॉन x की वैल्यू एप्सिलॉन y की गामा xy की वैल्यू, ये तो सिंपल है। अब के जो आंसर निकलने हैं ना, आप उस आंसर में जब एलिमेंट को, अगर मैं उस रिजल्ट्स को सिर्फ प्लॉट करना चाहूँ, उसने कहा ये थीटा p की एक वैल्यू -4.14 डिग्री, दो वैल्यूज निकली ना, उनमें से एक वैल्यू ये है, यस सर, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन की वैल्यू निकली है वो है क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये वैल्यू, ठीक है। यस सर, और दूसरी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, सो दिस इज वन प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है, मतलब ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेन है, और दूसरा जो थीटा p है उसके करस्पॉन्डिंग 85.9 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन x प्राइम की वैल्यू, मैं इसको क्या इसी अभी भी एप्सिलॉन x प्राइम ही लाऊं, क्योंकि उसी इक्वेशन में एप्सिलॉन x प्राइम वाली इक्वेशन में थीटा की एक डिफरेंट वैल्यू पुट कर दी है। मैं सिर्फ अगर आप कहते हैं थीटा लिख देते हैं -4.14 डिग्री, और ये है थीटा p = 85.9 डिग्री। इसके लिए आंसर क्या आया था, उसने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन उसको पता है कि फिर दूसरा जो एप्सिलॉन दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेन इसी एंगल के लिए होगा, तो आप लोग जिस तरह पहले पढ़ चुके तरीका उसी से यूज करते रहे। इट इज 203 into 10 raised to the power -6, सॉरी, ठीक हो गया। ये आंसर आपके पास आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये दो एंगल्स थीटा p के आगे, एक एंगल को पुट किया ये आंसर आया, दूसरे एंगल को पुट किया ये आंसर आया, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन इसके लिए 0 ही आना था, कैलकुलेशन में
वेरीफाई करना चाहते कर देना, कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। सो लेट्स, अब मैं इसको शो कैसे करूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं इसको, अगर ये आपको आता है तो फिर इट्स इजी, अदरवाइज थोड़ा सा आपको फिर ये आप शो कैसे करेंगे। दो लाइंस होंगी ना एक्स प्राइम और दो आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन लेट्स से मैं -4.14 ड्रॉ करता हूं, आपको पता नहीं ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक। तो मैं -4.14 किस डायरेक्शन में शो करूंगा, इधर को जाऊंगा या इधर को जाऊंगा, नीचे नीचे क्लॉकवाइज। ऐसे थोड़ा बड़ा मैंने दिखा दिया, 4.14 है। चलिए एक लाइन सेगमेंट 4.14 डिग्री का एंगल बना रही है, दूसरा 85.9, वो 85.9 वाला फिर ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, ठीक है। इस ऊपर वाले का एंगल 85.9 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज है और नीचे वाले का -4.14 डिग्री क्लॉकवाइज है। ये रेफरेंस लाइन सेगमेंट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू ड्रॉ। एक्स प्राइम नाम देना चाहे तो दे दे, एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या करूं, पहले स्ट्रेन बताने से पहले क्या करूंगा, अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट। अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट, दिस इज माय अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट। और डिफॉर्म्ड एलिमेंट को मैंने इनको देखा और मुझे पता है ये प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेन है, प्रिंसिपल स्ट्रेन, इसका मतलब है शियर स्ट्रेन इन एंगल्स करस्पॉन्डिंग गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम के आंसर क्या आना है, 0। इसका मतलब है these lines will still remain at the same angle 90 degree, they only have to change in length, ठीक है। so this is -353 इसके along, तो इसका मतलब है मैं यहां पे रुकूंगा और इसके लिए 203 पॉजिटिव, I'll go up past this point यहां पे, ठीक है। अब मैंने ये जैसे पहले करते थे उसी तरह ये बस आपने इसको कॉपी करके इधर रख लेना है और इसको कॉपी करके, एंगल्स आर स्टिल 90 डिग्री, नो शियर स्ट्रेन, ठीक है। और एंगल ये इंपॉर्टेंट है, बुक ने कंफ्यूज, बुक वाले से क्या मिस्टेक नहीं कहूंगा, लेकिन बुक वाले ने कंफ्यूजन क्या डाली है, एक्स वाई को भी दिखाया हुआ है, एक्स वाई को भी दिखाया। आप एक एंगल बता दें, या बस इतना कर दें किसी, या इधर से स्टार्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है उसको, बस इतना बता दें कि ये जो है मेरा 4.14 डिग्री है, बस ये माइनस नहीं लिखना, बस ये सेंस आपने बता दी, वो माइनस यही चीज कह रहा था कि मैं क्लॉकवाइज हूं, तो बस आपने क्लॉकवाइज दिखा दिया। अब माइनस को दोबारा से पेश करने की इसमें जरूरत नहीं है, बस 4.14 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। जैसे या आप इसका एंगल, एक एंगल लिख दें बस, दूसरा तो हमें पता होगा ना फिर, और ये बहुत ज्यादा 4-5 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं, बस 1-2 डेसिमल भी काफी है इसके लिए, ठीक है। So this is how you show the principal strains. You can keep scrolling up. Maximum shear strain को दिखाना हो, again equation उसी तरह की, वो ऊपर वाली फिगर तो given data को दिखा रही है, A वाली फिगर, थीटा s की दो वैल्यूज अगेन निकलेंगी, and you gotta just check for each angle. इस केस में जैसे स्ट्रेस के केस में था ना कि जिस प्लेन में मैक्सिमम इन प्लेन जिस थीटा के लिए शियर स्ट्रेन का आंसर मैक्सिमम निकलेगा, उसी एंगल के लिए नॉर्मल स्ट्रेन का आंसर 0 नहीं होगा, कितना होगा, एवरेज। प्रिंसिपल स्ट्रेन जिस थीटा p पे नॉर्मल स्ट्रेन मैक्सिमम या मिनिमम, प्रिंसिपल की बात हो रही है, और शियर स्ट्रेन 0, जैसे शियर स्ट्रेस 0 तो शियर स्ट्रेन 0। जिस अगर एक एंगल है थीटा s, ठीक, कोई थीटा s आपने कैलकुलेट कर दिया, एक रूट है, दूसरा जितने भी रूट्स आपने निकाल दिए, उस थीटा के करस्पॉन्डिंग आपका गामा x प्राइम y प्राइम आंसर क्या आएगा, या मैक्सिमम या मिनिमम, यही होगा। लेकिन उसी थीटा s के ऊपर एप्सिलॉन x प्राइम का आंसर 0 नहीं आएगा, वो एप्सिलॉन एवरेज आएगा, एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y का जो एवरेज वैल्यू है, ठीक हो गया। तो ये आपको यहाँ पे इस फिगर में मेरे आंसर दिखाई दे रहे हैं। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन्स दोनों तरफ एक ही वैल्यू है, एप्सिलॉन एवरेज,
और शीयर स्ट्रेन के आंसर जो भी आंसर आए उसके हिसाब से आपने बता देना है। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव दिखा देना, नेगेटिव मैं रिकमेंड करूंगा ये जो ऊपर स्क्वायर रूट टाइप की इक्वेशन लिखी हुई ना इस इक्वेशन में जाने की आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस इक्वेशन। आपको बस थीटा एस की दो वैल्यूज आ गई ना तो गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम की उसके अंदर पुट कर दो, बाय द वे यू गोना गेट द सेम टाइप्स ऑफ आंसर्स, ठीक है। यस सर। मतलब आप इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल दें वहां से, इस थीटा के लिए आंसर, इस थीटा के लिए आंसर, ठीक हो गया। इसका मोर सर्कल सिंबल ये तो चैप्टर ही आज खत्म करने लगे हैं आप। मैंने क्या नया पढ़ा है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है सर जी, टाइम से मैं खत्म करें नहीं यार। कर रहा, ये आप नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि ये मोर सर्कल बस। रमज़ान से पहले पहले वीक भी इन्होंने क्लास ही लेनी सर, पहले मुका दें ये। सॉरी मैं कि सर सिलेबस पहले ही आप सही कर रहे हैं मैं आपके में खड़ा हूं, पढ़ाएं सर जी, मैं ये कह रहा हूँ। और मेरा गेस्ट तब आप नहीं लगा वहां नहीं। ठीक है, आप सही करें सर। मैंने आपको I no more practice solving anything on the board, ये मैं इवन ESA में भी नहीं कर रहा, मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस अब्दुल्ला मैं आप बैठे थे मेरी क्लास में पीछे ESA में, मैंने कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं किया, ऑल न्यूमेरिकल्स उन्होंने खुद कर रहे हैं। आप तो बहुत बड़े हो चुके हैं, आपको मैथ कैट भी सीख चुके हैं, तो आपको तो डेफिनेटली मैंने यहाँ न्यूमेरिकल तो कोई नहीं करवाना था ना, so I just telling you कि बस इसको शो ऐसे करना है, ऐसे मैंने आपको कुछ भी नया नहीं, सर्कल ड्रॉ करना आते हैं, और सर्कल यस सर। वैसे बाय द वे बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो मैं चेक कर रहा हूँ आपकी ऐसे शीट, ज़्यादा लोग मैथ कैट में बहुत अनकम्फर्टेबल हैं, बहुत मतलब ऐसे लगता है कि बस मैथ कैट से जान जा रही है कि वहाँ पे कोई वेरिएबल की फॉर्म में किसी ने यूनिट्स अपनी मर्जी के डजंट केयर कि स्ट्रेस के यूनिट्स जो मर्जी आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई मसले नहीं है, जो मतलब वो खुद ही यूनिट सेट कर देते। अगला इंटर का पेपर मैथ कैट पे होना है, बस मैं आपको मोटिवेशन के लिए इतनी बात कर सकता हूँ, यू गॉट टू लर्न इट, और पेपर इसी तरह ही होना है, आपने लैपटॉप और वो लेके सॉल्व करना है बस। सो प्लेन स्ट्रेन के लिए मोर सर्कल रेडियस कैलकुलेट करना है और सेंटर लोकेट करना है, दैट्स दोस आर टू थिंग्स वी नीड टू डू, और वही उसी तरह से ही होना है दोबारा से, ये एक एक्सिस इस तरह होगा, दूसरा एक्सिस एप्सिलॉन x प्राइम ऑन दिस, गामा x प्राइम y प्राइम by 2 ऑन दिस एक्सिस, ठीक है। हाफ हम प्लॉट करेंगे। सो यार इसके लिए मेरे पास इतनी रंग बिरंगी एक स्लाइड पड़ी हुई थी, मैं तो बड़ी मुश्किल से कोई स्लाइड बनाता हूँ, वो क्यों ना आपको दिखाऊं। सो इससे आपको ना बिल्कुल आपको लगेगा कोई भी नई चीज़ नहीं है। लुक एट द एनालॉजी विद इक्वेशन फ्रॉम मोर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेस, ये प्लेन स्ट्रेस की आपने पढ़ी हुई है ना, उसी से बस आपने ये काम कर लेंगे तो प्लेन स्ट्रेन भी बन जाएगी। वैसे की इक्वेशन आपको याद करने में कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है, बिकॉज आपके पास हर चीज़ अलाउड, रजिस्टर्स आपके पास थे ना, अलाउड, आपको इक्वेशन याद करवाने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेस के केस में मोर सर्कल की इक्वेशन थी, ये स्ट्रेन के केस में है, ठीक है। बस ये चेंजेस है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यानी जस्ट कॉशन जहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सेंटर और रेडियस इस तरह से करते हैं, ऐसे मोर सर्कल प्लॉट कैसे होगा, ऐसे प्लॉट होगा, देखो एप्सिलॉन x प्राइम एप्सिलॉन y गामा x प्राइम y प्राइम बाय 2, ओके। सो इसलिए आपको गामा x प्राइम y प्राइम की फुल वैल्यू नहीं चाहिए, यू शुड कीप वर्किंग विद हाफ वैल्यू, ताकि जब आप प्लॉट करें तो ये ना हो कि आपने कैलकुलेट फुल वैल्यू की हो और प्लॉट आप AutoCAD पे फुल कर दें, यहाँ पे शोर हाफ पे प्लॉट करना है ना, इसलिए हमारे पास हाफ शीयर स्ट्रेन की वैल्यू पता होनी चाहिए। लोकेट द सेंटर, एप्सिलॉन एवरेज, सिंपल। व्हाट्स दिस पॉइंट, ब्लू पॉइंट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Of course, it's going to be the radius if you join the 2 points. But what is this point? Reference. Reference जो एलिमेंट है उसका कोई ना कोई एप्सिलॉन x और गामा xy होंगे ना, उसको भी हाफ करके फिर प्लॉट करना है। गिवन डेटा में हो सकता है आपको सिर्फ गामा xy गिवन होगा ना, जब उसको प्लॉट करेंगे तो
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, एप्सिलॉन एक्स तो डायरेक्टली गिवन होगा आपको डेटा में, ये मैं आपको न्यूमेरिकली इन वे करवा रहा हूँ कि गामा एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी हाफ करके यहाँ पे प्लॉट करनी है हमने। You join them, get your radius. There you go. Circle. Okay. इसमें सर UCS जो है वो डाउनलोड करना है। Yeah. Yeah, sir. Shear strain is negative downward. हाँ ठीक हो गया। ठीक है, उसी तरह से जो एंगल आपको यहाँ थीटा होता है इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे 2 थीटा होता है। ठीक है, सो नॉर्मल स्ट्रेन्स प्रिंसिपल वैल्यूज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ठीक है, और उनका एंगल, ठीक है, मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेन हाफ वैल्यू और एप्सिलॉन वहाँ पे क्या हो गया एवरेज, वो सेंटर से नीचे डायरेक्ट लाइन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एप्सिलॉन एवरेज ही है ना 2 थीटा एस, बस ये भी स्लाइड की हुई। So we're done with plane strain transformation। इसी तरह से इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन भी कैलकुलेट होनी है। सर्कल बेसिक नाम ड्रॉ करें उसका, मैंने सर्कल आपने बहुत ड्रॉ कर दी, इक्वेशन डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इक्वेशंस आप इक्वेशन तो बनाना होगा, ये वाली डायरेक्ट इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। सेम साइंस हो एप्सिलॉन 1 के तो एक इक्वेशन है, डिफरेंट साइंस है। Sorry? Almost. एक लेक्चर और होगा तो इसके बाद कॉलम्स पढ़ना है। Okay. So, any question? Oh, I need. चलो वो next time करेंगे।